Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to solve another question of complex group consolidation, and this time we'll do it with direct method. Last time we did a question with indirect method, which we call, which has another name of two-step method. Now we'll be doing this question with the help of direct method. So we have a question in front of you. The question is that H Limited acquired 75% of S Limited on 1st January 2014. The retained earning profit of S were 40,000 rupees. S Limited acquired 60% of T Limited on 30th June 2014 when the retained profits of T Limited were 25,000. There had been 20,000 on the date of H Limited acquisition of S Limited. So this is irrelevant. We are not concerned with this amount. Our concern point is the amount of retained earning of T when S acquired it. So S acquired 60% of T on 30th June when the retained profit of T was 25. So this is the relevant amount which we will be using in question for different calculations. We'll totally ignore this amount, 20,000. This is not the relevant amount here. Okay, then draft statements of financial position of H Limited, S Limited and T Limited as of 31st December. Okay, 31st December means by the end of this year, year 14, are as follows. So this is the statement of financial position statement of H Limited, this is of S Limited, this is for T Limited. Requirement is to prepare a consolidated balance sheet of all these three, and we will definitely consolidate the statement of S and T with H, right? Because this is the parent company, this is subsidiary and this is sub-subsidiary, or this is intermediate company and this is sub-subsidiary. Okay, so let's start. What we need to do is we'll be doing the same thing. We'll be preparing asset schedule, then we'll calculate the goodwill, then NCI, then retained earning, and finally we'll put these calculations in a final one balance sheet, one consolidated balance sheet, and we'll be done with this question. So nothing difficult, nothing new. एक दो नई बातें हैं वो मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा, बाकी पूरा फॉर्मेट सारी की सारी चीज़ें सेम है. So let's do it quickly. Let's start with asset schedule. So our first calculation is asset schedule. अच्छा, बात ये है कि पहले हम बनाते थे asset schedule अलग-अलग क्योंकि हमने I'm sorry, क्योंकि हमने इसको टू स्टेप मेथड से किया था इनडायरेक्ट मेथड से, राइट? तो इनडायरेक्ट मेथड में हमने दोनों को अलग-अलग किया था. पहले एक का स्केड्यूल बनाया, उसकी सारी कैलकुलेशन की, गुडविल, एनसीआई, रिटेन्ड अर्निंग, और हमने इंटरमीडिएट कंपनी और सब्सिडरी की कंसोलिडेशन बना दी स्टेटमेंट. उसके बाद उस स्टेटमेंट को उठा के हमने पेरेंट कंपनी के साथ कंसोलिडेट किया, फिर हमने उसका एसेट स्केड्यूल बनाया और फिर गुडविल, एनसीआई, रिटेन्ड अर्निंग और सारी की सारी चीज़ें. अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी हमने वन गो में गुडविल कैलकुलेट कर लेनी है जो आएगी एच लिमिटेड के अंदर. टी की भी एस की भी इकट्ठी होकर जो आएगी एक ही दफ़ा में कर लेंगे. एनसीआई को भी इकट्ठा कैलकुलेट कर लेंगे और इसी तरीके से रिटेन्ड अर्निंग को भी इकट्ठा कैलकुलेट कर लेंगे. लिहाजा एसेट स्केड्यूल जो है बनेंगे तो दोनों के अलग-अलग ही, लेकिन हम उन एसेट स्केड्यूल को एक ही वक्त में यहाँ पे प्रिपेयर कर लेंगे. ठीक है, तो हम एसेट स्केड्यूल बना लेते हैं जी. हमारे पास होता है शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग, और ये होता है जी एट द टाइम ऑफ consolidation, acquisition and then post acquisition, right? So ये हम कह लेते हैं, ये है जी S का, और फिर यहाँ पे आगे हम बना लेते हैं T का. तो ये T का एसेट स्केड्यूल यहाँ पर हो गया और ये S का एसेट स्केड्यूल यहाँ पर हो गया. तो T का भी ऐसे बनेगा at the time of consolidation, then at acquisition and then post acquisition, right? So अब फिगर्स अगर हम यहाँ पे पुट करें, क्वेश्चन में से फिगर देख लेते हैं. ये S का है, I'm sorry,
ये एस का है तो एस के लिए हमारे पास क्या है जी, 40,000 रिटेन्ड अर्निंग है एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन व्हेन एच एक्वायर्ड इट, और एस का जो कैपिटल है दैट इज 100, और कंसोलिडेशन के वक्त है 60. ओके, 40, 60 एंड 40. So 60 at the time of consolidation, retained earning, and 40 at the time of acquisition, और share capital 100, right? So इनका difference क्या आ रहा है हमारे पास 20, और इनका total क्या आ रहा है 140 and 160. ठीक है जी. अब हमारे पास ये एक important figure है, इसको याद रखना है हमने, और ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है, इनकी कैलकुलेशंस आगे चलती रहेंगी. अब हम देख लेते हैं टी को. टी का कैपिटल है जी 50, कंसोलिडेशन के वक्त है 30, और हमने कहा था ये दो गिवन है लेकिन हमने 25 लेना है क्योंकि एक्विजिशन के वक्त 25 था. तो 30, 25 एंड 50. ओके, सो 50 है जी शेयर कैपिटल, 30 at the time of consolidation, 25 at acquisition, 5 is the difference. It makes 75, 80. These are two important figures. इनकी बेस पे हमने आगे कैलकुलेशन करनी है. मैं आपकी आसानी के लिए इसको यहाँ पर बोल्ड कर रहा हूँ. ठीक है, अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं जी इसकी गुडविल की. गुडविल हमने कैसे करनी है? गुडविल का हमें मालूम है कि एक्विजिशन के हमने कॉस्ट लेनी है, और फिर उसके बाद हमने उसमें एनसीआई ऐड करना है, और फिर एसेट्स को लेस करना है. तो गुडविल हम पहले दो बनाते थे, गुडविल यहाँ पे एस की, फिर टी की. तो यहाँ पे भी हमने काम ये करना है लेकिन वन गो में ही कर देना है, हमने इसमें ब्रेक नहीं देनी. पहले इनडायरेक्ट मेथड में हम करते थे कि गुड स्केचुअल चुके लेते बन रहे थे, तो पहले एस की गुडविल बनाते थे, टी की बनाते थे, उसको एस के साथ करते थे, फिर सेकंड स्टेप पे एस की बनाते थे, उसको एच के साथ कंसोलिडेट करते थे पेरेंट कंपनी के साथ. यहाँ पे चूंकि इकट्ठा है तो एस की भी हम यहाँ पे बना लेंगे, और फिर टी की भी आगे यहाँ पे बना लेंगे, तो उनको फिर एंड पे हम इकट्ठा कर देंगे. सो हमारे पास है जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जब एच ने एस को एक्वायर किया था तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर गिवन है, इन्वेस्टमेंट इन एस 120, राइट. इन्वेस्टमेंट इन एस 120, और एसेट हमें वहां से मिल. ओके जी, हमारे पास ये है 120 इसकी है, और फिर आगे हम इस पे एसेट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 120, एसेट इसके हैं हमारे पास जी 140, और इसने एक्वायर कितना किया है? एक्वायर किया 75%, तो बाकी 25% हमारे पास बनता है. तो हम 140 का 25% लेंगे, उसको यहां पर हम ऐड कर देंगे 140 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये है जी 35. इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 155. ये हमने एनसीआई इसमें ऐड किया था. और अब हम इसमें से लेस करेंगे एसेट्स एट एक्विजिशन. वो कितने हैं जी? वो हमारे पास ये हैं 140. तो हमारे पास कितने आएंगे? गुडविल एस, तो एस की गुडविल हमारे पास कितनी आई? 15. इसी तरीके से अब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है टी की. अब टी का मामला इस तरह से है कि अगर तो हम, अब ये बात समझ लें, ये बात नहीं है, प्लीज इस पर फोकस कीजिए. अगर तो हमने टी की रूटीन की, अगर हम स्टेप मेथड में, टू स्टेप मेथड से या इनडायरेक्ट मेथड जिसको कहते हैं उससे कर रहे होते, तो तब तो हमने सिंपल ये करना था कि एस ने टी का 60% एक्वायर किया है, तो 60% एक्वायर्ड है, तो एनसीआई कितना हो गया? 40%. चीजें सिंपल है जैसे हम रूटीन में करते रहे हैं. यहाँ पे बात ये कि डायरेक्ट मेथड से करना है, यानी कि एच का वाया एस टी में कितना परसेंट शेयर है और कितना एनसीआई बनता है. क्योंकि डायरेक्ट मेथड है तो हम एस को बीच में से स्किप ही कर रहे हैं. स्किप से मुराद ये कि हम उस पहले टी को एस के साथ, फिर उस आंसर को एच के साथ, ऐसे नहीं कर रहे. स्किप से मुराद ये है कि बस एच का इस पर जितना शेयर है वो पकड़ा, और फिर एच का वाया दिस टी में जितना शेयर है वो ऐड किया, और फिर
उठा के हम इसको बैलेंस शीट में डाल देंगे। तो हमने ये देखना है कि एच का टी में वाया एस कितना शेयर है। तो एस ने टी का कितने परसेंट एक्वायर किया, 60%, और एच ने एस का कितना परसेंट एक्वायर किया, 75%। इसका मतलब है कि ये जो 60% है यहां पर एस का टी में, इस 60% का 75% बिलोंग्स टू हुम, इस 60% का 75% बिलोंग्स टू एच। पॉइंट दोबारा समझें, एस की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, जितना भी सब कुछ है, उसका 75% बिलोंग्स टू एच। अब एस का जो इन्वेस्टमेंट टी के अंदर है उसका भी 75% एच से बिलोंग करता है, वो अपने पास लिखेगा। तो 60% है एस का, 60% है शेयर टी में। तो ये 60% को हम अगर 100% समझें और इसका 75% लें तो इतना शेयर है एच का टी में, और बाकी क्या है, एनसीआई। ठीक है, तो हम सिंपली करते हैं कि जी हम 60 का 75% लेते हैं, ये 45 आ गया। तो 45 शेयर है और रिमेनिंग 100 होता है ना टोटल। तो 100 में से इसको लेस किया तो 45 शेयर है, 45% शेयर है, और 55 इज एनसीआई। ओके, 45% शेयर, ये अब हम एच की बात कर रहे हैं। एच का टी के अंदर 45% शेयर है और 55% एनसीआई है। इसका मतलब है जब हमने एनसीआई कैलकुलेट करनी है टी की तो हम 55% के हिसाब से करेंगे, और जब रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट करेंगे तो वो उस परसेंट से करते हैं ना जितने परसेंट शेयर है, तो वो हम 45% से करेंगे। ये हमारे पास एक नई चीज़ है। ठीक है, और ये आपने याद रखना है, और ये क्वेश्चन का हिस्सा है, ये आपने कैलकुलेशन करनी है, इसके अलहदा से मार्क्स हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं कि हमने इसको करना किस तरह से। सो ये जनाब एस की गुडविल थी, यहाँ ये एस की गुडविल है, गुडविल एस मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब हम टी की गुडविल करते हैं, इसी यही रनिंग कॉलम है, इसी पे लेके चलते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब हम टी की बात कर रहे हैं। अब कॉस्ट है कितनी, कॉस्ट हमारे पास है जी इन्वेस्टमेंट इन एस, इन्वेस्टमेंट इन टी 80 है। ठीक है, लेकिन ये 80 हमारे पास से तो नहीं गया, अब हम एच कंपनी एच बन के सोच रहे हैं, अब हम पेरेंट कंपनी बन के सोच रहे हैं। तो ये 80 सारे का सारा हमारे पास से तो नहीं गया, हमें इसकी कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, हमारी कितनी परसेंट इन्वेस्टमेंट है, हमारा एच का एस की हर चीज का 75% उसका। ठीक है, तो हम इस कॉस्ट का, कॉस्ट कितनी है 80 है, मैं यहाँ इसके पास करता हूँ, कॉस्ट है 80, हमने इस कॉस्ट का कितने परसेंट बिलोंग करता है, हमसे 75% बिलोंग करता है। तो वील जस्ट कैलकुलेट 75% ऑफ 8, तो ये हमारे पास कितना आता है 60। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखें जी, हमारे पास कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट ऑफ एस इन टी इज 80, तो हमने कहा कि एस की हर चीज का 75% बिलोंग्स टू अस एच, और हम एच की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए ही ये सारी की सारी वर्किंग कर रहे हैं। तो इस 80 का 75% लेंगे और उसको लिखेंगे एज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी एनसीआई जो हमने ऐड करना है, और एनसीआई हम किसका लेते हैं, एसेट एट एक्विजिशन का। एसेट एट एक्विजिशन कितने हैं 75%, और एनसीआई 75, और एनसीआई कितना है ये 55। ये प्लीज अपने पास ये आपने समझ लेना है कि 55 है, टी की सारी कैलकुलेशन के लिए हम इसको यूज करेंगे। सो वी जस्ट कैलकुलेटेड एनसीआई, सो ये एनसीआई हो गया, इसे कितना लेना है 55% डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया जी इसका एनसीआई 41.25। हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये आ गया, और इसमें से हम लेस कर देते हैं जी एसेट एट एक्विजिशन, वो 75 है एसेट एट एक्विजिशन। तो अगर हम इसमें से इसको लेस करें तो हमारे पास आता है 26.25। अब इसको और इसको अगर हम ऐड कर लें, लाइक वी ऐड दिस प्लस दिस, तो ये है जी हमारे पास टोटल गुडविल। ठीक है, दिस इज गुडविल टी एंड दिस इज टोटल गुडविल।